آواز آ رہی ہے تجھے؟ جی سر جی، بولے بولے سر بولے، کیا بھائی ہوا؟ مجھے گالیاں دے کے گیا، بلاک کروں کہ نہیں کروں؟ او بھائی، جو بندہ گالیاں دے اس کو بلاک کرو، یہ شارٹ شوٹر نہیں تھا، کوئی اور ہے، جو بھی تو ہے شارپ جو شوٹر بلاک ہے، کرو گالی، اللہ کی قسم شارپ شوٹر ہے۔ جو بھی ہے بلاک کرو، جو گالی دیے تو بلاک کرو، بس شارٹ شوٹر ہو یا نام کوئی بھی ہو۔ نہیں آپ کو شدید غلط فہمی ہو، یہ کائنڈ سب یہ وہ شارپ شوٹر نہیں یہ تھا۔ شارپ شوٹر نہیں ہے، ویسے شارپ شوٹر کی آواز دی تھی ہے، ویسے چلے بارہ لگ رہا ہے جو بالکل بھی تو۔ تھا اسے لگ نہیں رہا، نہیں تھی یار، آواز مجھے تو نہیں لگی، بالکل پتہ وہ نہیں۔ نہیں تھا یہ، نہیں بولنے آواز تھوڑی مطلب پھر بھی کافی غلط تھا۔ جو بھی ہے بات، آپ اس کو بلاک کر دیں، بس سیدھی سی بات۔ اب مجھے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، البتہ پھر دوبارہ اوپر آتا ہے نا کر۔ یار چلے کوئی مجدد بات والے سلسلے کو چھوڑ کے پہلے نبوت والا مسئلہ حل کر نہیں نا وہ جاری ہے کہ عامر باقی عزیز صاحب، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا حل، صحیح کہہ رہے ہیں طارق صاحب۔ سائن آرڈر پر بھائی ایک بات بتا دوں، یہ وہ دور آ گیا ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے بہت کثرت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ وسلم نے دیکھیں فرمایا عثمان صاحب نے دیکھیں کتنا پرفیکٹ بات کی ہے، جو بگاڑ پیدا ہوا اس کو ٹھیک کرے گا، مطلب اصلاح کرے گا، اصلاح کرے۔ بات ختم۔ اب وہ اصلاح کرنے کے لیے جو منہ سے الفاظ نکالے گا، نہ وہ حجت ہے نہ وہ خود حجت ہے، پتہ نہیں، عجیب مجھے فلسفہ سمجھ آتا ہے۔ بات یہ انتہائی میں مزہ کا خیز بات ہے طریقے کہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرے گا، تو آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے آ جائے گا، کوئی بات نہیں، اپنی تجدید کر کے چلا جائے گا، لوگ اپنے مست لگے رہیں گے کام میں۔ ماننا بھی یہ ضروری نہیں، مزہ کا پہچاننا بھی ضروری نہیں، کچھ بھی ضروری یہ نہیں۔ حدیث کا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیج رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں کوئی پتہ، ٹھیک اچھا ہے تجدید میں کرے تو جائے بتاتا ہوں گا۔ ان کو، میں ایک منٹ دوسرے طریقے سے کائنڈ ڈاکٹر صاحب، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے۔ سنیں، جی جی اگر یہ ساری دنیا دو خداؤں کو ماننے لگ پڑے، آپ کے ارد گرد سارے بندے دو خداؤں کی پوجا کریں، جی جی ایک جی بندہ آتا ہے وہ آپ کو قرآن سے نکال کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ ساری دنیا گمراہ ہے۔ جی جی۔ آپ نے اس کی بات مان لی، آپ نے اپنی اصلاح کر لی، آپ اس پر ایمان لے کر آئے کہ قرآن پر ایمان لے کر آئے؟ یار دیکھیں، یہ تو سیدھا سیدھا بات جو ہے نا، نبی جو آتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہی پیغام لے کے آتے ہیں، اور وہ یہی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جو قرآن میں درج ہے کہ دیکھو جی وہ کسی کو جو ہے نا آپ نے بیٹا نہیں ماننا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مطلب اس پہ مان لانا پڑے گا یا اس بات پہ مان لینا پڑے گا، یا اس بات کو مان لینا بہتر ہے یا اس پہ مان لینا ضروری ہے؟ لیکن بات وہی ہے، جب رسول اللہ نے ایک الفاظ کہہ دیے نا کہ ایک 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 کا سیدھا ایک آئے گا صدی کے شروع میں یا آخر میں، نہیں، اس کا ٹھیک ہے ایک نا؟ کا بھی کرتے ہیں، ایک کا بھی کرتے ہیں، پہلے یہ کلیئر ہو جائے۔ کی بات آپ نبی کے بارے میں جو آپ نے ٹرائی کی ہے نا، یہ کے لیے نص قطعی نہیں ہے، اس کے لیے صرف یہ استدلال ہے کہ کیونکہ وہ
अल्लाह ने उसको मबूस किया है दीन की तजदीद के लिए, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये सारी बातें इनके अच्छा, आमिर साहब अपने एक बात सुने, आमिर साहब बात सुने, बात यह है कि मुजद्दद की बात पर ईमान उसकी बात मानना तो हम पर फर्ज होता है या नहीं होता? वो बात उसकी है ही नहीं, वो बात तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है जो वो बता मतलब रहा वो है। जो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बता रहा है हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही बता रहा है? उसके लिए हाँ, वो जब वो कुरान और हदीस को आपके सामने निकाल कर रखेगा और कहेगा कि ये जो कहानी शरीफ बाबा जी ने लिखी है ना, ये बाबा जी की कहानी शरीफ छोड़े, ये कुरान है, ये हदीस है, ये अल्लाह के नबी का फरमान, ये अल्लाह का फरमान, इसको मानो। और ये बताएगा कि नहीं बताएगा कि मुझे अल्लाह ताला ने मबूस किया तुम नहीं है ना, इसके लिए कोई नसे कतई नहीं है कि आपको उस पर ईमान या उसकी बेइज्जत पर ईमान नहीं, लाना। ईमान चाहे आप ना लाएं, लेकिन आपको इतना पता होगा कि नहीं कि वो कोई मुजद्दद है या नहीं है। अगर वो दलील शरई देता है, आपके सामने रखता है कुरान और हदीस की वो दलील नसे कतई रखता है, तो आपको तो खुद ही नजर आए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हाँ ये सब बड़े डेंजर जोन में जा रहे हैं। मतलब मेरी बात सुने, बात ये है, थोड़े से डेंजर जोन में इस तरह जा रहे हैं ये कि ये कह रहे हैं कि ये पहचान नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, आएगा चला जाएगा, हम पहचान नहीं। इस तरह पता क्या होगा, रसूलुल्लाह के जो वाज़े वर्ड है ना कि उनकी पेशन गोई है कि आएगा, मतलब उसको पहचानेगा नहीं तो किस तरह पता लगेगा कि उनकी पेशन गोई सच्ची हुई है कि नहीं हुई है? ये रसूलुल्लाह की पेशन गोई है कि हर सदी के आखिर में आएगा। हाँ, ये रसूलुल्लाह की जो पेशन गोई है ना, इसको मैंने और आपने पूरा नहीं करना। वो जब उस वही वाली पाक जुबान से बात निकली थी उसी वक्त पूरी होगी, क्योंकि हर सदी के लिए वो अल्लाह ने तो पूरा करना है ना भाई। हाँ, वो हमने नहीं पूरा करना, हमें उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है। यकीनन हर सदी पर वो लोग आए, फिक्र नहीं, हमने आमिर साहब मानना तो है फिर ना। मिर्जा साहब पे कायल लगता है, मानने के ये लिए पेशन दलील गोई चाहिए थी ना। सच्ची नहीं हुई, ये पेशन गोई थी सच्ची नहीं हुई, सबूत दो सबूत दो सबूत दो। फिर तो यार देखिए ना, मेरे मोहतरम ऐसा है कि अगर कोई बंदा ये कहना शुरू कर दे भी क्यामत नहीं आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया था क्यामत आएगी, तो आप ये पेशन कोई पूरी करके दिखाओ। भाई जब आएगी उसके लिए टाइम है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुअय्यन हैं, कुछ ऐसी हैं जो मजमूई तौर पर बातें कही गई हैं। जो मुअय्यन हैं हम उनके बारे में सवाल करते हैं कि अगर आप के किसी नबी ने, जिसको आप नबी मानते हैं, उसने ये कहा है कि 2025 तक ये होगा, तो वो तो मुअय्यन बात है। अगर अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आएगा, हमें उसको लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आएगा, वो काम करेगा, बस वो अपना तजदीद दीन करेगा, वो अल्लाह उससे काम लेगा, बस। तो ये हमारा ईमान आप ये लाना। कह रहे हैं ये सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है आता होगा जाता होगा, सबूत नहीं मांगो कि उनकी पेशन गोई। होगा नहीं, होगा नहीं। है कि हम नहीं तो है? मानते हैं कि आता रहा है, हर सदी पर आता रहा है, कोई ना कोई बंदा वो तजदीद दीन करके आपके जाता है, अल्लाह ताला उससे काम लेता है। आप मिर्जा साहब की पेशन गोई है, सबूत मत मांगिए। भाई मिर्जा साहब अगर एक बात कहते हैं कि 2025 तक ये काम होगा, तो वो मुअय्यन बात है, उसका तो जवाब देना होगा, सबूत देना होगा ना। ना देंगे तो हम कहेंगे झूठी निकली बात। यार अली अकबर को कोई ड्रॉप ना करे भाई। अच्छा बहरहाल समझ आ गई, पर आप बात दोनों तरफ वसूल एक ही है, सबूत कोई ना मांगा जाए, ठीक है ना? ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ वो बात करें। मैंने ये कहा है कि अगर मुअय्यन बात है तो उसके लिए सबूत चाहिए, अगर मुअय्यन बात नहीं है तो उसके लिए सबूत नहीं चाहिए। मतलब ये मोइन बात नहीं है, ये सही हदीस मोइन नहीं है, ये पेशन गोई नहीं है रसूल अल्लाह की। तो नहीं समझने लगे तो यार काम काइंड हार्ट भाई तू रौनक लाई, रौनक। रखना रौनक ना लाओ। नहीं मान अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਜੱਦਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। रहमतुल्लाह भी क्या छड़ा ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। यार ठीक है, सबका बेड़ा डूब गया, लेकिन तुसी तो मान लो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। बिल्कुल डूब गया है, सारा कुछ डूब गया, लेकिन तुसी तो मान लो। अच्छा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਧਰ। अच्छा नहीं वो डूब गया, सारा कुछ डूब गया, लेकिन तुसी मान लो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨੇ ਚ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਹਾਂ। ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੇ ਚ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਾਨੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ।
यार भाई जेडी नबूवत यार दसी आप हो मान जारी लेना मिर्जा साहब ने नबूवत किन्होंने हैं मैंने आज ये समझाओ नबी कहंदे किन्होंने हेलो मैं अर्ज हाँ, कर तो रहा जी दस- नबूवत ते बंद है ना तो है। जे मिर्जा साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डॉक्टर साहब मुजद्दद ਦੇ देखो तौर ਤੇ यार मान लिਆ तो डॉक्टर नबूवत हो साहब गई बंद ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ मुजद्दद वाला खाता हाँ, मान ही जाएगा 2-4 मुलाकातों में राह पर ले तो आए हैं उससे बात नहीं आपको ले आएंगे हो जाएगा काम इंशाल्लाह, आप मुजद्दद फिक्र ना वाला करें। मुजद्दद वाला कंडा भी अमर निकल साहब जाएगा एक दिन नबूवत एक वाली दिन तो अमर खींची साहब गई एक दिन जरूर मुजद्दिदीन को मानेंगे। जरूर बिल जरूर मैं क्या नबूवत वाला तो कंडा निकल गया हुन रह गया पीछे मुजद्दद तो वाला ठीक बस है, वो तो थोड़ा सादा देर- पट्टा तो बह गया, लेकिन थोड़ा सा आपको भी तो ले मुद्दत डूब के चाहिए, हमने लेके डूबना है ना सनम। हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे ले अमर साहब की गल डूबेंगे। सुनो अमर साहब मशहूर तो ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਪੜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਜੋ मैं तो कहना पिया कि तुसी सीधे हो जाओ थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੁਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ इसमें कौन ਨਬੂਵਤ इनकार ਦਾ करता ਇਜਰਾ है? ਬੰਦ देखिए, ਕੀਤਾ एक है सेकंड, इनकार करते हैं। डॉक्टर, एक सेकंड, थोड़ा सा रह गया, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ? हैं डॉक्टर साहब इनकार करते हो मिर्जा साहब मुजद्दिद हैं कि नहीं? मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब मुजद्दिद हैं कि नहीं वो? डॉक्टर हज़रत साहब मसीह अलैहिस्सलाम मुजद्दद भी थे और उम्मती मुजद्दिद नबी भी हैं, थे। वही वो जिल्ली बरूजी नबी, मुझे पता है सारा कुछ। बिल्कुल हाँ है वो हम हमारा ईमान है जो हजरत मसीह सलाम ने फरमाया है हम उस ठीक पर है, मीनो आन पूरा पूरा ईमान रखते हैं। हाँ ठीक है ना? उन्होंने ठीक है, फरमाया कि एक पहलू से उम्मती और एक पहलू से नबी ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ जिल्ली बरूजी बता दिया ना मुजद्दिद है। अब आगे आप तो मान लो। ਖੈਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਖਰਜ ਮਿਨਲ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ यार ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਨੋ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਮ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾ ਲਾਓ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ यार काम तो बन गया है, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਮੰਨੋਗੇ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਅਸੀਂ- ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ यार ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਉਮਤੀ ਹੋ एक पहलू से उम्मती हो गए ना एक पहलू से उम्मती हो गए नबूवत बंद हो मेरी गई गल सुनो। नबूवत बंद हो गई इन्होंने गल वो नबूवत तो मेरी गल जो सुन लो रसूल मेरी गल पाक वाली है वो तो नबूवत का सिलसिला बंद है ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि मैं जिली भी और उम्मती भी नबी हाँ और रसूल हाँ सीधी जी गल है और जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मीनो आन पूरा तारक साहब भी मुतफिक ने तुसी ना मुतफिक होना आपने पूछा तो सही देखो जी, रसूल वो होता है जो पैगाम पहुंचाता है, किसका रसूल आखिर बाद में वही होगा, रसूल अल्लाह के जो पैगाम पहुंचाएगा, किसका रसूल अल्लाह का आगे पैगाम पहुंचाएगा, जी जी बिल्कुल रसूल वही होगा। ठीक है ना? अब रसूल तो उस मामले से है, ठीक है ना, कि वो पैगाम पहुंचा रहे हैं आगे, पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। आगे अब नबी जो है उन्हें बता दिया जिल्ली मतलब मुझ पे साया है नबूवत का, खत्म हो गई बात यहाँ पे, ठीक है ना? आगे मुजद्दिद वो है। अब तुसी गल करो कि मुजद्दिद जो है जो हदीस में लिखे है उस तरह तुसी मानते हो कि नहीं मानते हो? मुजद्दद भी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो नबी नहीं है जिल्ली नबी हैं और इस नबी के लफ्ज को आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मिर्जा साहब के लिए एग्री हैं समझ आ गया, आगे चलो। मतलब मिर्जा साहब के लिए लफ्ज नबी का इस्तेमाल नहीं करना और ब्राडों पे लिख के नहीं लगाना नबूवत जारी है नबूवत जारी है ठीक आ गया, समझ आ गया, सिर्फ नबी लेकिन का मुझे वो- यार वो मुझे नहीं आप कहना। उसको बात का जवाब नहीं दे रहे, उससे बात एक पहलू से उम्मती और एक पहलू से नबी ओ बेड़ा गर्क हो गया जे अजीम भट्ट साहब ओ तुसी किथे ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਈ ओ अजीम भट्ट साहब ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ओ दो बंदे गुमराह हो गए ने ਕਾਇੰਡ ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गुमराह हो गए हैं? ਨਾਲ ये एक मेरी समझ गल नहीं आती जब हदीस का नाम लो तुसी साढ़े ना पे छोड़ पाते हैं। ਲਾਓ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ज़ेब ਉੱਤੇ नहीं ਆ ਗਏ ਨੇ ਲਿਆਓ नहीं ਉਹਨਾਂ अजीम ਨੂੰ भट्ट साहब नहीं लेना, नहीं लेना, मेरी गल नहीं सुनो। लेना, नहीं नहीं ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्योंकि वो सुनते नहीं आ रहे, पहले से शुरू से सुनते नहीं आ रहे, तुसी दूसरे पासे जो है ना मोड़ देनी है गल, तुसी ਤੁਸੀਂ बस ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੋੜੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ नहीं कॉल अरे पर नहीं काल। कॉल, क्योंकि वो शुरू से नहीं सुन रहे, नहीं लेने। अजीम भट्ट साहब की कॉल उठाएं ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋੜੇ ਪੈ यार ये अजीम भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम
अरे मैं अभी बिजी था, मैं अभी दोबारा आ गया। क्या हुआ अजीम भट्ट साहब की आवाज आ रही है और लिख रहे हैं, कॉल क्यों उठा रहे कॉल नहीं हैं? ले यार रहे, वो कॉल आप नहीं ले रहे। हम लोग डिस्कशन चल रही है तो उन्होंने पहले नहीं सुना हुआ तो पुरानी हिस्ट्री पूरी सुनानी पड़ेगी, वो अपना सुनानी पड़ेगी कितना सुबह कितना अल्लाह भाई, उनको यार नहीं यार, बात ये है, देखें अजीम भट्ट साहब है ना, वो आएंगे, उन्हें आप आराम से बता दें कि अगर वो डिस्कशन के अलावा कोई कहेंगे तो उन्हें बता दें कि वो अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी जो तजवीर साहब हैं अब उनसे जवाब नहीं बन पड़ रहा और अब दूसरों को हम हेल्प के लिए अजीम बुला भट्ट साहब इन्होंने नहीं, मान नहीं, लिया भट्ट कि साहब, मिर्जा साहब अजीम- मुजद्दद सान है ते नबूवत बांधे एक ना सेकंड रुक नाम जाओ। नबी आ नहीं, सकता मैं है। कोई नहीं, रुक जाओ हो जी। यार, नजीर साहब बबर शेर इन्हें सोड़े नहीं ना पढ़ना। यार रुक नहीं, जाओ नहीं, ना, नहीं, भट्ट साहब। यार गोपना समझाओ यार। भट्ट साहब मैं समझाना उन्होंने। नहीं अजीम नदीर साहब आप ना कुछ कहना, मुझे नहीं पता भट्ट साहब किस साहब सिनेरियो में आए हैं, अगर अहमदी दोस्त ये समझते हैं कि जो आमन रजू साहब कह रहे हैं मैं आंखें बंद करके मान लूंगा तो किसी ये गलत फहमी है। इस तरह मुझे पता हो जाएगा जो करते हैं। ठीक है, चलो जी आप समझाओ जी, चलें, तुसी ठीक है अच्छा आप अब्दुल्ला क्योंकि अभी जफरुल्लाह शाह नए साहब आए हो ठीक तो है, अभी अंदर आपको पता नहीं चल रहा है कि हम हदीस पे अमर साहब जफरुल्लाह शाह बात कर साहब रहे हैं, जो हदीस सुनो। मुजद्दीन है ना उस पे बात कर रहे हैं सारी, ठीक है ना। इनको भी नबूवत खत्म हो चुकी जे, नबूवत बंद हो गई जे ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ पे ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ठीक है, अब आगे तुसी बात सैयद करो ना, जफरुल्लाह मान शाह लिया साहब वो की कहना उस तरह नबी नहीं होता, मान लिया। है। अच्छा तुसी जो है मुजद्दद की हदीस ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, इस्लाह करन आएगा सदी के अंदर जो हो जाएगा बिगाड़ पैदा हो जाएगा, ओदी दुरुस्तगी करने आएगा, लेकिन वो जो कहेगा ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। यार या ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ है ना नबूवत का ਉਹਦੀ भागा ਗੱਲ मिल ਨੂੰ। गया। जी हो गया नबी गल। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मुजद्दद थे। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी मैंने एक तो कह किसी दिया, हदीस से पता नहीं क्यों भाग रहे हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ बड़े कि मुजद्दद नबी और थे। रसूल अल्लाह ने उन्होंने किया। एमसी साहब ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੈਠ यार हम तो हो गए गुमराह, हम सारे गुमराह हो गए। तुसी दस सब दियो गुमराह हो गए। तुसी ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਐਨੋ ਅਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁੱਸਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਇਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ हम सारे हो गए ना यार। डॉक्टर अहमद साहब मुझे पता है आपको समझ आ रही है वो क्या कर रहे हैं, अब समझ आ गई होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਠੀਕ है ना। ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ ਆਪ यार इधर उधर काहे को जा रहे हो यार, इधर उधर काहे को जा रहे हो यार। मुझे बस उस बात हदीस को मानो और क्यों नहीं मानते। ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁनो। अमर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਖਾਸ ਬੰਦਾ। यार टू सीकर भाई को ऊपर ले, मैं नीचे जाता हूँ। टू सीकर भाई और बाबर साहब से बात करो। मुझे समझ नहीं आ रही, मनो अन हदीस को मानने ना पता नहीं क्यों कर लो। अल्लाह हाफ़िज़। झूठ से कहते मैं डरना अहमद साहब देखें, अल्लाह ताला ने ईसाइयों को भी चलो अहले फिर किताब अपने कहा है। अजीम भाई ना करो बात। हाँ जी, अल्लाह ताला ने ईसाइयों को भी अहले किताब कहा है, लेकिन इसके बावजूद कुरान ने कहा है कि उनकी तौहीद वो तौहीद नहीं जो कुरान ने पेश की है। तो आपका खत्म नबूवत का अकीदा वो खत्म नबूवत का अकीदा नहीं जो कुरान पेश करता है। अब बताएं उसकी कोई दलील है आपके पास? ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ नहीं ਮੰਨਦੇ? हाँ जी, हमारा खत्म नबूवत का अकीदा वो अकीदा है जो कुरान पेश करता है। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? जी बिल्कुल 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 100%, 1000%। नबूवत जारी है कि बंद है? जी जारी है, इस उम्मत के अंदर जारी है। जिल्ली बरूजी नबी जिल्ली जी नबूवत। ज़ाहिर जब इस उम्मत में कह दिया ना तो जिल्ली बरूजी उम्मती जो भी नाम दे। बात खत्म हुई ना। ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਦੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ 1901 ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ, ਵੈਸੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ। तो यार आदम वो अलैहिस्सलाम मजदूर तो शुरू हो गए। हो गया। अच्छा नबी का मतलब की होता है तुम दस दो, चलो चलो आज दस दो। ਨਬੀ नबी का मतलब अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ यार नबी का मतलब की होता है?
नबी पाक पर आकर नबूवत का सिलसिला बंद हो गया ना। अब ये जो कुछ आप कह रहे हैं आमिर जिल्ली, नबी साहब, बुरकुती, नबी का मतलब की हुंदा है? जिस जी इस उम्र से बाहर जो है वो तमाम दरवाजे नबूवत के बंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके वो बंद कर दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी उम्मत में भी बंद कर दी। यार देखो गूगल पे लिखे है जी नबी का मतलब है, उम्मत के अंदर लिखे है जी अमीन नज़ीर अंकल, मेरा एक सवाल है आपसे। ये ला यार नबी बच्चे आबादी कर लो यार, बेटा बहुत शोर करता है यार, इस बच्चे को ला किसने नबी उठा लिया? आबादी का तर्जुमा क्या है? aside from Prophet नहीं sallallahu alaihi बताएं तो सही, ला नबी आबादी का तर्जुमा क्या है? wasallam, against Prophet sallallahu alaihi wasallam। आप ओके दोस्तों, जरा मसरूफ होने लगे हैं, इंशाल्लाह फिर ठीक मुलाकात है जनाब, खुशी हो अल्लाह जाए। हाफिज़। देखिए मेरे भाई, ये हिम्मत नबी नहीं का करेंगे। मतलब मैं जो आपको लिखा बता रहा हुआ हूँ, है कायन ना, हटट साहब, ये हिम्मत नहीं करेंगे तर्जुमा करने की। ला नबी यार मैं आबादी तो का आपको तर्जुमा। मानता है हूँ, तर्जुमा। मैं तो तारिक चौहान वाला बिलीफ रखता हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि मेरी बात सुने। अच्छा ओ बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, सिंह सुनो। बाट साहब सुन लिया जे। हाँ, सुन लिया जी, क्योंकि उनको और हमारा बिलीफ एक है इस मामले में, इतना मैं बता दूं। अच्छा दूसरी बात, ओहो हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा सुने, नबी का मतलब की होता है, उनसे अभी पूछ लें जिल्ली नबी मानते कि नहीं मानते, अभी बता देंगे वो आपको। चौहान साहब पुटो माइक। चौहान साहब जिल्ली नबी है कि नहीं? वो फोन रख के वाशरूम गए मेरे। वॉशरूम चले गए हैं, अलबत्ता। कायन हटट नबी का मतलब इतने लिखे है मेरे भाई, नबी का मतलब है जो अल्लाह ताला का मैसेज जो है, अल्लाह ताला का मैसेज क्या है? कुरान है ना, वो पहुंचाता है। काइंड अटट भाई, जिल्ली का मतलब क्या है? जिल्ली का मतलब साया, जिसका साया हो नबूवत का। ਐਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। बंद हो गया, गल खत्म। एक सेकंड ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਲੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਬੂਵਤ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਬੀ ਆਏਗਾ, नबी नहीं आ 10 दफा सुन लीजिए, 10 दफा गल सुन लीजिए। मैं जरा अच्छा, मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। अमीन नज़ीर साहब, मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। मैंने बात सुन ली है। फिक्र भाई, मैं थोड़ी देर पहले आया था आपसे। जी जी, जिल्ली का मतलब काइंड अटट भाई ने बताया है कि मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ नहीं होता। सेकंड यार बात से कर लो ना। आमिर साहब 2 मिनट से म्यूट ना दो, ताकि उनको शोर आ रहा है, म्यूट ला लो जरा। अच्छा, जिल्ली बरूजी यानी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेल और बरूज है ना, उनका साया है, ठीक है ना। इसके अंदर नबूवत वाला जिक्र ही कोई नहीं। नबी कहाँ पे बंद हुए हैं? ग्रॉट में बंद हुए हों तो अलग बात है, अल्लाह ताला ने तो बंद नहीं किए नबी, ना कुरान पाक में बंद किए हैं, ना किसी हदीस में बंद किए हैं। वो कह रहे हैं मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हूँ। नबी तो ऑलरेडी हैं ही हैं, मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिल्ली बरूजी की तो बहस ही नहीं करनी चाहिए, वो तो एक साया है ना। जैसे हर साहब कर लो गल, मैं तो बिजी होने लगा, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ठीक है यार, तुझे हदीस का जवाब नहीं देना, अब बंदा की करे। मेरी बात जरा मुकम्मल होने दीजिएगा। वो नबी जैसे हर बंदे का एक साया होता है ना, उन्होंने कहा मैं नबी पाक का साया हूँ, ठीक है, अगर आप जिंदगी का साया ले रहे हैं तो। बाकी रह कि नबी होना, मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं अल्लाह ताला के, ना वो कुरान में कहीं नबूवत बंद होने का जिक्र है, ना ही कहीं हदीस में नबूवत का बंद होने का जिक्र है, ना ही मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किसी किताब में लिखा कि नबी पाक की नबूवत बंद हो गई है, उनके ऊपर नबूवत खत्म हो गई है, ठीक है। इसलिए ये फालतू में बहस हो रही है। असली बहस होती है उसको किया करें जो इल्मी गुफ्तगू हो ना। जी बिल्कुल, कुरान में है। ये क्लाउड सफर भाई आए हैं, इनसे मेरा अगर आप सवाल मुझे करने दें। एक मिनट मैं बेबांगे दहल कहता हूँ कि कुरान करीम में नबूवत खत्म होने का जिक्र है, बिल्कुल बेबांगे दहल कहता हूँ मैं। जी वो आपसे 50,000 दफा बात हो चुकी है, आप नहीं बता सके आज तक